Hello students, hope you all are healthy and welcome once again to my class. This video is for class 6 and today we'll continue our chapter 5 of history, that is Vedic period and later Vedic period. In our last class we learned in this chapter about the Vedas and we learned that after the Indus Valley civilization a new era came which was known as Vedic period. And why the period was known as Vedic period? Because the Vedas were written during this period and the Vedic age, the Vedic period or the Vedic age was divided into two parts. The whole Vedic age was divided into two parts. The first one was the early Vedic age and the second one was the later Vedic age or the early Vedic period or later Vedic period. So first in this topic we'll come to know about the early Vedic period. In our last class we learned about four types of Vedas. There are four Vedas: Rig Ved, Sam Ved, Yajur Ved, Atharva Ved. So now we'll learn about the early Vedic period, that how was the political life, social life, economical and religious life of the people during the early Vedic age. Early Vedic age के दौरान लोगों की आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक जिंदगी कैसी थी वो हम इस टॉपिक में जानेंगे. So during early Vedic period, the most of information of early Vedic period comes from Rig Veda. तो ज़्यादातर जो अर्ली वैदिक पीरियड की जो भी जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, वो हमें कहाँ से मिलती है? ऋग वेद से. That's why this age, this early Vedic age is also known as Rig Vedic age और Rig Vedic period. इसलिए इसको हम ऋग वैदिक एज के नाम से भी जानते हैं. Now, first topic of early Vedic period is political life. Now in this topic we'll come to know how was the political life of the people during the early Vedic age. So people were divided into different tribes. So during early Vedic age people was divided into different tribes. अलग अलग tribes में बांटा गया था, उनको डिवाइड किया गया था. And the tribes were known as janas. उन tribes को क्या कहते थे? उन समूह को, group of people को क्या कहते थे? जना. During this period, and the head of the tribe was a king. Like nowadays we are leaded or we are guided by a head. हमारा एक head होता है. जैसे कि स्टेट में, अगर हम पूरे स्टेट में देखें तो कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, and for whole of the country there is prime minister or president. So that time also there were head of the tribes who were known as king, जिनको क्या कहा जाता था? king. और उस समय उनको राजन कहा जाता था. क्या कहा जाता था? राजन. king was known as rajan, who was elected on several occasions. Nowadays the leaders are elected through elections. कैसे चुने जाते हैं? elections के through. But that time the Rajan was elected on several occasions. अलग अलग occasions होते थे जिसमें राजन को elect किया जाता था, चुना जाता था by a tribal assembly. कबीले की ही एक assembly होती थी, सभा होती थी जिसमें लोग राजा को चुनते थे. And that time the life of the kings was not as same as the life of the kings in later Vedic period. तो उस समय में अर्ली वैदिक एज के दौरान जो राजन होते थे, किंग होते थे, उनकी लाइफ जो लेटर वैदिक एज के दौरान किंग्स होते थे उनसे काफी डिफरेंट होती थी. एंड हाउ वाज द लाइफ ऑफ अर्ली वैदिक age kings was different because
in early Vedic age, the kings do not have their capitals, do not have their armies, and they do not have their palaces. तो उनकी कोई कैपिटल सिटी नहीं होती थी, कोई राजधानी नहीं होती थी, उनका खुद का कोई महल नहीं होता था, ना तो उनके पास बहुत बड़ी सेना होती थी जैसा कि लेटर वैदिक पीरियड के दौरान होता था. सो दे वर सिंपल एंड their responsibility was to save their tribe. और उनकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, उनका जो मेन काम होता था किंग का, वो क्या होता था? टू सेव देयर ट्राइब, टू प्रोटेक्ट देयर ट्राइब फ्रॉम एनिमीज. एनिमीज से अपने ट्राइब को, जन को, लोगों को बचाना ही उनका काम होता था. उनकी कोई लैविश लाइफ नहीं होती थी, उनके पास बहुत ज़्यादा बड़ी सेना या बहुत सारे नौकर चाकर नहीं होते थे. Now there were two tribal assemblies during the early Vedic period. उस समय में मेनली मुख्यतः दो तरीके की असेंबलीज होती थी, सभाएं होती थी. द फर्स्ट वन वॉज नोन एज सभा एंड द नेक्स्ट वन वॉज नोन एज समिति. पहली जो असेंबली होती थी उसको सभा के नाम से जाना जाता था और दूसरी समिति. नाउ व्हाट वाज सभा? द असेंबली of probably the elders and important people. वो असेंबली जिसमें ज़्यादातर एल्डर पीपल, ठीक है, बड़े लोग या फिर इम्पोर्टेंट पीपल जो सिर्फ महत्वपूर्ण लोग हिस्सा लेते थे, दैट असेंबली दैट वाज नोन एज सभा. उसको किस नाम से जाना जाता था? सभा. एंड अ गैदरिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ एवरी फैमिली. और एक दूसरी गैदरिंग, एक दूसरा असेंबली जिसमें कि फैमिली के जो जन होता था, ग्रुप होता था, ट्राइब होती थी, उसके सारे लोग इकट्ठा होते थे परिवार के, जिसमें हर एक मेंबर इकट्ठा हो सकते थे, गैदर हो सकते थे, फैमिली के सब लोग इकट्ठा हो सकते थे. दैट वाज नोन एज असेंबली और समिति. उसको सभा या समिति, उसको क्या कहा जाता था? समिति. उस असेंबली को क्या कहा जाता था? समिति. एंड बोथ men and women of the tribe or of the family were the members of the assembly. और आदमी और औरत दोनों मेंबर होते थे, सदस्य होते थे असेंबली के. एंड द रिलीजियस मैटर्स, जो भी जो धार्मिक मैटर्स होते थे, उस पे राजा को असिस्ट कौन करता था? प्रीस्ट. उनकी हेल्प या उनको जो भी इंफॉर्मेशन होती थी, जो भी सुझाव होते थे, एडवाइस होती थी, वो कौन देता था? प्रीस्ट. नाउ आवर नेक्स्ट वन टॉपिक इज इकोनॉमिक लाइफ. व्हाट वाज द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल? आर्थिक स्थिति क्या थी लोगों की? हाउ दे यूज्ड टू अर्न देयर लिविंग? व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग दैट टाइम? लोगों का क्या ऑक्यूपेशन था, रोजगार क्या था? So, early Vedic people reared animals such as cattle and horses. Early Vedic period में लोग क्या करते थे? पशुपालन करते थे, ठीक है. वो ज़्यादातर वो कौन से एनिमल्स पालते थे? हॉर्सेस एंड जो भी गोट है, काउ, बुफेलोज. Now, what was the occupation of the people that time during early Vedic period? So agriculture and cattle rearing were the main occupation. तो उस समय मुख्य जो रोजगार था, मेन ऑक्यूपेशन था लोगों का, वो क्या था? एग्रीकल्चर, खेती, एंड कैटल रियरिंग, और दूसरा पशुपालन. नाउ एंड अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग, देयर वर अदर ऑक्यूपेशंस आल्सो, लाइक व्यूइंग, chariot making, and jewelry making, pottery making, metal work, fishing, carpentry, etc. इसके अलावा लोगों के पास और भी काम थे. chariot making. What is chariot? Chariot is a type of vehicle. एक तरीके का vehicle होता है in which there are two large wheels, जिसमें दो बड़े पहिए होते हैं, and usually this vehicle is pulled by the horses.
तो इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, रथ। इसमें दो बड़े पहिए होते हैं और इसको कौन चलाता है, हॉर्सेस। इसको खींचने का काम कौन करते हैं, घोड़े, उसी को कहते हैं चैरियोट। और बुनाई का लोग काम करते थे, पॉटरी मेकिंग, बर्तन बनाने का काम, एंड कारपेंट्री लकड़ी के सामान बनाने के काम भी होते थे। एंड the cow was considered valuable and was gifted to priests by the kings. As I told you, cattle rearing was very important during this period. पशुपालन बहुत कॉमन था और बहुत महत्वपूर्ण भी था। And in cattle, cow was considered valuable. Nowadays also cow is very valuable. It provides us dairy products like milk, butter and so on. So that time also cow was considered valuable and was gifted to priests. और गाय बहुत ही महत्वपूर्ण होती थी, बहुत ही वैल्यूएबल होती थी और उसको गिफ्ट किया जाता था प्रीस्ट को, पुजारियों को। किसके द्वारा, किंग के द्वारा। मीन्स किंग used to gift the cow to priests. And that time during early Vedic age, the priests also acted as teachers and doctors. Means priests were not involved in only religious activities that time during early Vedic age, but they also acted as teachers and doctors. ना सिर्फ वो पुजारी होते थे या पूजा कराने का काम कराते थे, बल्कि वो टीचर और डॉक्टर का भी काम करते थे, बिसाइड कंडक्टिंग रिलीजियस सेरेमनीज कंडक्ट कराने के अलावा। सो प्रीस्ट यूज्ड टू गिव द नॉलेज ऑफ वेदास टू द चिल्ड्रन। मीन्स एज आई टोल्ड यू, दे एक्टेड एज टीचर्स। तो वो टीचर के तरीके एक्ट करते थे और उसमें वो क्या करते थे, नॉलेज प्रोवाइड करते थे। वेदों में लिखी हुई जो ज्ञान होते थे, नॉलेज होती थी, उसको प्रोवाइड करते थे चिल्ड्रंस को, बच्चों को। एंड दे एक्टेड एज डॉक्टर्स बाय गिविंग मेडिसिन्स, मीन्स बाय यूजिंग देयर हर्बल मेडिसिनल नॉलेज। अपने जो भी उनके मेडिसिन के जो भी उनको ज्ञान होता था, हर्ब्स के बारे में उनको जो भी नॉलेज होती थी, उसको यूज़ करके लोगों को वो बीमार होने पे उनका ट्रीटमेंट भी करते थे, उनको मेडिसिन या हर्ब्स भी प्रोवाइड करते थे। एंड दैट टाइम दे एक्ट एज डॉक्टर। उस समय वो डॉक्टर के तौर पे एक्ट करते थे। सो दैट टाइम प्रीस्ट वॉज नॉट important for only religious matters, but they were a teacher also and a doctor also. Now our next topic is social life and religious life of people during the early Vedic period. This topic will continue in our next class. Till then you have to read the chapter properly, read the revise the topics. And don't forget to give your attendance in the comment section. Write down your name, your class and section. Thank you, class.